Hello, welcome to Chanakya Academy's online classes. This is standard 9th class English medium, subject English. Okay, dear students, today we are going to learn chapter number 2, The Sound of Music, from our main book, Beehive. Okay, part 1, Evelyn Glennie listened to sound without hearing it. Okay, what is its name? Evelyn Glennie. Name listen to sound without hearing it. उसे सुने बिना उसे सुन सकते हैं. What is given? चलो, before we read, 2 points are here. God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. Read the following account of a person who fought against the physical disability and made her life a success story. Means God may taken her hearing ability. Means भगवान उससे hearing ability ले सकता, means वो सुन नहीं सकती, but something extraordinary भी देता है. What we hear, जो हम सुनते हैं, she feels, वो सुन सकती है. For more deeply than us, जितना हम फील करते हैं उससे बहुत ज़्यादा फील वो करते हैं. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुल, इसलिए वो म्यूज़िक को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकती हैं. ओके, तो वो कौन है, तो उससे मिलना होगा. ओके, किसकी बात चल रही है? एवलिन ग्लेनी. ओके, हम सुन सकते हैं, वो फील कर सकती हैं. Some word meaning are given here. Jostle means push roughly. Slight means small and thin. Daunting means frightening. Aspiring musician means a person who wants to be a musician. Aspiring person, जो बनना चाहता है. Daunting means frightening, डरा हुआ. Slight means small and thin, पतला. Push roughly. Okay. Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. Means rush था, ज़्यादा लोग आ रहे थे. Rush hour means generally जब ट्रैफिक के आवाज़ होते हैं उसे rush hour बोला जाता है. But there are many crowds. Jostle means push roughly, एक दूसरे के ज़्यादा push कर रहे थे for position to take seat on the underground train platform. उनकी जगह लेने के लिए जो underground train platform था वहाँ एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की हो रही थी. A slight girl, looking younger than her 17 years, was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. It's a slight girl, एक girl थी, looking younger, young लग रही थी than her 17 years. Age कितनी होगी? 17 years of age. Was nervous yet excited. वो nervous भी थी and excited भी थी. Why? Because she felt vibration. वो देख तो नहीं सकती but she feels vibrations of approaching train. जो ट्रेन आ रही है उसे जो प्लेटफॉर्म पे जो वाइब्रेशन होता है वो फील कर सकती है. शी कैन नॉट सी बट शी कैन फील. इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. It was her first day. उसका पहला दिन था. for किसके लिए? prestigious Royal Academy of Music. इसलिए प्रेस्टिजियस, जो बहुत नामचीन है एकेडमिक, जो म्यूज़िक सीखने के जा रही थी, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो लंदन में स्थित है. एंड डॉन्टिंग मीन्स फ्राइटनिंग, थोड़ी सी डर रही थी. इनफ फॉर एनी टीनेजर, कोई भी टीनेजर गर्ल जो फ्रेश गर्ल थी, जो कभी सीखी नहीं थी, वो सीखने जा रही थी, तो थोड़ी सी सा नर्वसनेस होगी, डर होगा. फॉर स्कॉटिश गर्ल, स्कॉटिश फार्म मीन्स वो स्कॉटिश थी, स्कॉटलैंड से आई हुई थी. और कोई भी एक लड़की जो फार्म में रहती तो वो सीधा अगर लंदन में सीखने जाए तो ऑब्वियसली शी फील्स फ्राइटनिंग. बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट. शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ. बट aspiring musician means a person who wants to be musician faced bigger challenge. ज़्यादा चैलेंज उनके सामने आने वाले थे देन मोस्ट जो पहले थे. शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ. शी वॉज टोटली डेफ थी, मीन्स ना बोल सकती थी.
सॉरी नहीं कुछ सुन नहीं सकती थी. एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. मीन्स एवलिन का जो हियरिंग कैपेसिटी थी धीरे धीरे वो कम हो रही थी, जा रही थी, अब सुन नहीं सकती थी. हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो. मीन्स ये पता कब चला? When her mother remembers, उनकी मदर को याद है कि नोटिस किया था समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है. When the 8-year-old एवलिन, जब 8 साल की थी एवलिन, तब was waiting to play a piano, जब वो पियानो प्ले करने के लिए वेट कर रही थी. They called her name and she didn't move. मीन्स जब पियानो के लिए उन्होंने उसका नाम बोला, बुलाया उसको, बट she didn't move, वो मूव नहीं हुई. I suddenly realized she hadn't heard. मुझे सडनली रियलाइज हुआ, कुछ पता चला कि शी डिडंट, उसने नहीं सुना. सेज इजाबेल ग्लेनी. किसने बोला ये कि नहीं सुन सकती? इजाबेल ग्लेनी मीन्स उनकी मदर. फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर. मीन्स फॉर क्वाइट अ वाइल, थोड़े टाइम के लिए एवलिन ने मैनेज किया था कि ये सीक्रेट रख सके कि वो डेफ हो रही है, कि धीरे धीरे वो सुन नहीं सकती, तो उसके फ्रेंड और टीचर से ये छुपाती फिरती थी. बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटोरिएटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट. मीन्स बाय टाइम, धीरे धीरे टाइम होता है, शी वॉज 11, जब वो 11 ईयर्स की हुई तब वो सबको पता चल चुका था. एंड उनके हेड मिस्टर प्रिंसिपल ने भी उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि उसे कोई स्पेशलिस्ट के पास ले जाए, उसे चेक करवाए डॉक्टर के पास. ओके. Some more also important words are given here. Impaired means weakened, weak होना. Xylophone, name of instrument of musical instrument with a row of wooden bars. Row होती है wooden bars से, जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं. Of different lengths, different lengths, बड़े होते धीरे धीरे स्मॉल होते वो तो it is called xylophone. Percussionist means a person who plays the drum, the तबला ड्रम बजाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? Percussionist. Potential, a quality or ability to that can be developed, or capacity. Audition, give a set audition देते वो short performance so that the director could decide whether she was good enough or not. Intriguing means fascinating and curiosity वाला. Okay. So it was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. Means then पता चला कि her hearing was severely impaired. उसकी जो hearing capacity है वो severely impaired, वो बहुत इफेक्ट हुई है, और धीरे धीरे as a result gradual धीरे धीरे उसके जो nerves थे वो डैमेज होते गए और सुनना कम हो गया. They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. And they were advised means उनके मदर फादर को एडवाइस दी गई थी that the school be fitted. तो उसके लिए ये she should be fitted with hearing aids, जो aids होते हैं, मशीन्स होते हैं जिससे वो सुन सकती थी, ऐसे मशीन फिट कर उसके कान में करवा जाए. एंड सेंट टू हर फॉर अ डेफ स्कूल, और उसको कहाँ भेजा जाए? जो स्कूल जो डेफ के लिए होते हैं, जो सुन नहीं सकते, उनके लिए जो स्कूल है वहाँ उसे भेज दिया जाए. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन. और एवलिन सेड एवरीथिंग सडनली, उसमें मेरे लिए सब कुछ एकदम सडनली सब कुछ ब्लैक लग रहा था. मीन्स कुछ सुन नहीं सकती थी, कुछ फील ही कर सकती थी, सुन नहीं सकती. तो वो बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. बट एवलिन उसका नाम, एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, वो छोड़ने नहीं सकती, वो हताश नहीं हुई, निराश नहीं हुई. She was determined to lead a normal life and pursue her interest in music. And she was determined, she decided to lead a normal life, to live a normal life as everyone live, and pursue her interest in music.
एंड उसका जो म्यूज़िक में इंटरेस्ट था वो धीरे धीरे उसने बढ़ाया. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. One day she saw that one girl was playing a xylophone बजा रही थी, and she decided at the point she wanted to play it. कि मैं भी इसको बजाऊंगी xylophone को. Most of the teachers discouraged her. मोस्ट ऑफ द टीचर्स उसको डिस्करेज कर दिए थे, उसे इनकरेज नहीं करते थे कि नहीं तुझे करना था, कि नहीं है तू नहीं कर सकती, तू नहीं कर सकती, ऐसा डिस्करेज कर रहे थे. बट परक्यूशनिस्ट रॉन फॉब्स, एक परक्यूशनिस्ट मीन्स जो जो ड्रम तबला बजाते हैं उसे परक्यूशनिस्ट बोला जाता है. कौन थे वो? रॉन फॉब्स. स्पॉटेड हर पोटेंशियल. उन्होंने इस लड़की का पोटेंशियल मीन्स एबिलिटी देखी कि इस लड़की की में कुछ एबिलिटी है कि ये कुछ कर सकती है, ऐसा नोटिस किया. किसने? रॉन फॉब्स. ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. मीन्स ही बिगेन, उन्होंने स्टार्ट किया बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स. डिफरेंट टाइप्स जो नोट्स ने रिदम होते हैं उसने ड्रम बजाए. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स एंड ही वुड से, उन्होंने क्या बोला? डोंट लिसन थ्रू ईयर, तू तेरे कान से मत सुन. ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे. मीन्स तू उसे फील करने का ट्राई कर, तू जस्ट ट्राई टू फील इट, नॉट टू हियर इट बाय योर ईयर्स. जस्ट सेंस इट, जस्ट फील इट बाय योर अदर नर्व्स, सेज एवलिन. Suddenly I realized I could feel the higher drum, and as Evelyn says, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. Now Evelyn said मैं फील कर सकती थी, जो हायर नोट लो नोट थे उसे फील किया जा सकता था, अब मैं फील कर सकती थी. फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और फोर्ब्स ने ये एक्सरसाइज रिपीटेड करते रहे, उसे फील करवाते रहे, उसे सुनता रहे. And soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of body. And जल्द ही Evelyn find that she could sense, she could feel certain notes. कुछ notes जो xylophone बजाते वो फील कर सकती थी अब in different parts of her body. उसके पार्ट जो बॉडी के पार्ट थे डिफरेंट पार्ट में अब उसे पता चलता था कि ये कुछ हो रहा है. I had learned to open my mind and body to sounds and vibration. The rest was sheer determination and hard work. Means Evelyn said I had to learn, मुझे सीखना होगा, to open my mind, मेरा माइंड ओपन करना है मुझे, and body, और मुझे बॉडी के जो पार्ट्स है ऑर्गन्स है उसे ओपन करना है. क्यों? टू साउंड एंड वाइब्रेशन, टू फील, जो साउंड है और वाइब्रेशन से मुझे फील करने हैं. द रेस्ट वॉज शेयर, और बाकी सारा जो है वो डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क से ही होगा. She never looked back from that point onwards. और तब से लेके आज तक वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखी. She toured the United Kingdom with a youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make a music her life. Means she toured the United Kingdom. वो यूनाइटेड किंगडम यूके गई, इंग्लैंड, विथ a youth orchestra, एक ऑर्केस्ट्रा के साथ. एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, कब? जब वो 16 की एज की हो रही थी. शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक अ लाइफ, और उसने डिसाइड कर लिया था कि उसकी लाइफ म्यूजिक से है. शी ऑडिशंस फॉर रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, और उसने ऑडिशंस और परफॉर्मेंस भी दी रॉयल एकेडमी जो लंदन में थी म्यूजिक की. एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, और उसने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए थे, सबसे ज़्यादा. जो एक एकेडमी थी वहाँ पे जितने भी ऑडिशन है सबसे ज़्यादा मार्क्स उसने लिए, बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क. शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस. नाउ धीरे धीरे ग्रेजुअली शी मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा, जो बैंड होता है ग्रुप में, उस वर्क से धीरे धीरे वो सोलो मीन्स अकेले सिंगल परफॉर्मेंस के तरफ बढ़ी और सिंगल परफॉर्मेंस देने लगी. एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स, उसने 3 years कोर्स करा, पढ़ाई वो सारे म्यूजिक में. She had captured most of the top awards, and उसने most of the जो top awards होते थे वो सब उसने हासिल किए. And for all this, और उसके लिए एवलिन would not accept any hint of heroic achievement. और एवलिन को इसके लिए कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उसने कुछ बड़ा हासिल कर लिया. बस if you work hard and know where you are going, you will be get there.
शी सेड ऑलवेज इफ़ यू वर्क हार्ड, आप अगर हार्ड वर्क करोगे एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आपका एम आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, देन यू विल गेट देयर, तो आपको वो हमेशा मिलने ही वाला. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप. The world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. She got right up the top, और टॉप पे पहुंची थी. The world's most sought, वर्ल्ड का जो मोस्ट अफेक्शनेट और जो sought after multi-percussionist, एक साथ बहुत सारे चीज़ बजा सकती थी विथ अ मास्टरी, और वो भी एक्सपर्टीज के साथ. सम 1,000 इंस्ट्रूमेंट, वो एक नहीं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजा दी. एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और वो बहुत सारे इंटरनेशनल शो भी करने लगी. उसका जो शेड्यूल होता था वो हेक्टिक होता था, एक के बाद एक वो शो करने लगी थी. इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग. मीन्स उसकी जो क्यूरियसिटी है कि वो क्यूरियसिटी होगी टू वॉच एवलिन को देखना हमारे लिए, टू फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग. वो एक सुने बगैर, वो सुन नहीं सकती फिर भी ऐसे अच्छा म्यूज़िक बजा सकती है, वो हमारे लिए क्यूरियसिटी है. इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. मीन्स हमारे अगर हम 2 hour डिस्कशन उसके साथ करने तो वो एक भी वर्ड मिस नहीं करते, सब कुछ फील कर सकते. मैन विथ बशी बियर्ड्स गिव अ ट्रबल. शीला ऐसी क्या बोलते हैं, मैन विथ बशी बियर्ड्स, कि मैन मीन्स जो मैन है वो एक उसका बियर्ड दी गई है, गिव मी ट्रबल, वो बशी बियर्ड गिव, वो मुझे ट्रबल देती है. इट इज़ पिक्चर है ये एवलिन का. इट इज़ नॉट वॉचिंग द लिप्स, इट इज़ होल फेस, एस्पेशली द आईज. शी स्पीक्स फ्लोलेसली विथ अ स्कॉटिश लिप. मीन्स वो विदाउट देखे बगैर वो फील कर सकती है, वो लिप्स पढ़ सकती है और सब कुछ पता चल सकता है. इट्स द होल फेस, वो पूरा फेस, एस्पेशली द आईज. जनरली वो आईज तो खास करके वो पढ़ सकते. शी स्पीक्स फ्लोलेसली विथ अ स्कॉटिश लिप, एंड शी कैन स्पीक्स फ्लोलेसली विदाउट एफर्ट, मेकिंग एफर्ट ज़्यादा, और विदाउट मेकिंग एनी फॉल्ट और मिस्टेक. स्कॉटिश लिप मीन्स अभी वो स्पीकिंग जैसे वो स्कॉटिश गर्ल पढ़ते हैं वैसे. My speech is clear because I could hear till I was 11. And she said, my speech is clear because I could hear. जब तक मैं 11 years की तब तक मैं सब कुछ सुन सकती थी, so मैं मुझे बोल सकती हूँ मैं. She says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. But that doesn't explain, वो explain नहीं कर सकती how she managed, वो कैसे manage कर सकती थी कि वो French and master basic of Japanese, वो Japanese भी सीख सकती थी. As for music, she explains, it pours it through every part of my body. And for a music, वो music के लिए कहते हैं कि it pours through every part of my body. Means वो मेरे body के part में से निकलता है, जो music है वो मेरे body के सारे part में से निकलता है. It tingles in the skin. Tingles means causes a slight pricking or slight sensation. Means feel होता है, sensation होता है, स्किन में सेंसेशन होता है. माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर. मीन्स वो बोलती है कि मैं म्यूज़िक है वो मुझे फील हो सकता है मेरी बॉडी के हर पार्ट में. वो मेरी स्किन में भी सेंसेशन होता है, लाइक मेरी चिक बोन है वहाँ भी सेंसेशन होता है. इवन माई हेयर कैन लिसन और फील द म्यूज़िक. व्हेन शी प्लेज द xylophone she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. एंड सी ऑल्सो सेड कि जब मैं बजाती हूँ xylophone, शी कैन सेंस द साउंड, जो साउंड बजता है वो फील कर सकती हूँ, सेंस कर सकती हूँ. पासिंग अप द स्टिक, जो स्टिक में से जो स्टिक में बजाती हूँ वहाँ से लेके मेरी फिंगर टिप्स है वहाँ से मुझे सेंसेशन होती है. बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी फील द रिजोनेंस फ्लोइंग इन टू हर बॉडी. एंड शी ऑल्सो बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, अगर ड्रम के साथ अगर वो बैठी है ड्रम बजाते हैं, शी कैन फील, तो उसका रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, तो वो पूरी बॉडी में वो फील कर सकती है. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, चाहे वो वुडन प्लेटफॉर्म हो तो शी रिमूव्स हर शूज़, तो वो अपने जो शूज़ है वो रिमूव कर देती है, सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अपर. तो वो वाइब्रेशन होते हैं, वो बेयर फीट होने की वजह से वो पूरे वाइब्रेशन जो उसके बॉडी में जा सकते हैं वो फील कर सकती है.
Not surprisingly, Evelyn delights her audiences. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of Year award. मीन्स वो सरप्राइज हमारे लिए नहीं होगा कि एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस कि वो अब अपनी ऑडियंस को वो खुश कर सकते हैं. इन 1991 में शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ईयर अवार्ड. तो 1991 में रॉयल फिल्हार्मोनिक सोसाइटीज़ ने उसे एक अवार्ड दिया था, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड उसे दिया गया. सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड के उसके बारे में कहते हैं, गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. इस शायद कि गॉड ने उसे सुनने की ताकत ले ली बट वो कुछ नया एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसे दिया. वॉट वी हियर शी फील्स, जो हम सुनते हैं वो फील करते हैं फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, कि हम जो जितना फील करते हैं उससे कम बहुत ज़्यादा. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो, इसलिए वो म्यूज़िक को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकते. वी कैन नॉट डू इट. एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ वर्काहॉलिक. वो कन्फेस करते हैं ऐसे सही कि वो वर्काहॉलिक है. वर्काहॉलिक मीन्स अ पर्सन हु फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप वर्किंग. वो काम करते जाओ ऐसा काम प्रिय. आई हैव जस्ट गो टू वर्क, मुझे काम पे जाना पसंद. ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, कि जो क्लासिकल म्यूजिशियन है उनके पास, बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस. बट वो रिवॉर्ड जो मुझे मिलता है वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. मीन्स जो ये रेगुलर कंसर्ट होते हैं उससे अलग एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री विदाउट टेकिंग एनी मनी. इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स में वो फ्री कंसर्ट करती है, वो बजाती है वहाँ जाके म्यूज़िक. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन. एंड ऑल्सो वो हाई प्रायोरिटी मीन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है उसे जो क्लासेस जो यंग म्यूजिशियन होते हैं उनके लिए. एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज. एंड रिचिन नाम है वो एक लड़की का, ऑफ बीथोवन फंड से फॉर डेफ चिल्ड्रन, जो डेफ चिल्ड्रन को जो फंड चलाते हैं वो कहती है शी इज़ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन. शी इज़ इंस्पिरेशन, वो एक इंस्पिरेशन है जो डेफ चिल्ड्रन है उनके लिए. दे सी दैट देर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो. वो लोग देख सकते वो बच्चे दैट देर इज़ नो वेयर दैट, ऐसा कोई प्लेस नहीं है कि वो वहाँ नहीं जा सकते जो डेफ चिल्ड्रन है वो. एवलिन ग्लेन हैज़ ऑलरेडी accomplished मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस her age. कि एवलिन ने इतना तो हासिल कर लिया है कि ज़्यादा कि पीपल अपनी एज में 2 बार करे उससे तो ज़्यादा. शी हैज़ ब्रॉट percussions to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are handicapped. और वो हैंडीकैप जो है उनको इंस्पिरेशन भी देती है. People who look to her and say, जो लोग उसे देखते और कहते हैं इफ़ शी कैन डू आई कैन, और वो उसे देखते यही बोल सकते हैं कि इफ़ शी कैन डू, अगर वो कर सकती है तो वाई आई कैन नॉट डू, आई कैन डू. एंड नॉट एट लीस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस. और वो बहुत सारे पर्सन के लिए वो एक प्लेजर देती है और इम्पोर्टेंस है और इंस्पिरेशन है. इट इज़ रिटन बाय डेबोरा काउले. ओके, it's a very inspirational story about Evelyn. Okay, dear students, one more work for you, that you have to find Evelyn details in Google and also YouTube, then you can find it. Okay, thank you for watching. If you have any query, if you have any doubt, you can ask me. I hope you are doing good. And in the next lecture, next video lecture, part 2 of this chapter, the Shahnai of Bismillah Khan, it is also related, also music. Okay, बिस्मिल्लाह खां अपने नाम में भी होगा, तो उससे उनके रिलेटेड, उनकी लाइफ रिलेटेड ये है चैप्टर. इट्स ऑल्सो वेरी नाइस चैप्टर, ऑल्सो वेरी नाइस एंड इंस्पिरेशनल स्टोरी. ओके, थैंक यू once again.